Hello, friends. A very warm welcome. And here we are dealing with the economics optionals paper two, and specifically those questions which can really help us to understand not only from the perspective of the information part, but we will try to understand what more we can write by reading a reasonable amount of information and whether we are writing on track or not when our question demands a kind of a dynamic element, because questions will be from the syllabus, but the kind of environment, kind of scenario, kind of changes, kind of technological developments, kind of the kind of examination demand, kind of administrative system, from those all perspectives, can we do something more? Let's try to see that. That is the whole purpose. It is not to see the best answer, it is to see everybody writes in their own way and everything is best if we are trying to be honest. Explain the drain of wealth theory in the 20th century. The drain of wealth theory, as propounded by Dadabhai Naoroji. So we must be bringing. You can just say you have to put year obviously in the bracket. We must write the bracket in the year. This will give us. Because drain of wealth theory is not something which is very unknown or which is very, as far as option subject is concerned, was visible and invisible drain of wealth and mental well-being of India and Indians, which got ingrained into the way of life people. I think very beautifully written, very philosophically written. But again, economics optional paper 2 is there. So I will be more interested in going into the mind of Dadabhai Naoroji and thinking that how he was thinking economically, because he was able to understand it economically. So first paragraph I will write that how he was able to understand from the economic perspective. That is very important. But what you have written, I appreciate that. But I think he was able to understand कि हम लूट रहे हैं, सिर्फ philosophically and economically लूट रहे हैं, as you have already described. Home charges to paying the salary and allowances of British officials in Britain, mercantilism based on trade, sucked and exploited the raw materials from cotton to spices at bigger prices and to fund. I think we've written, ठीक है. Excessive indebtedness of artisans and later collapse of their living making, and unwilling farmers with no options left for dignified living. Indians paying for British imports like stopping bullions into India post beginning of permanent land revenue system. So I think you have explained it in your own way, and I think it's not fairly well written. But I think the 4 points, when we are talking about the home charges, when you are talking about the investments like guaranteed investments, what was there in railways also. So there will be four keywords, I would say. If you just go back to the theory, even if you just Google it, when you will see the drain of wealth, you will find that actually we must have brought a small a kind of a circular diagram also, like how this drain of wealth is happening, as I have discussed in some other conversation also. That would make you different from others, but otherwise I think you have fairly done justice. And it all depends, it all depends, I would say that marking, if the marking is little liberal, you can definitely get very good score. I would have appreciated if you would have brought not just like you have written in the end also, not just RC Dutt बल्कि और भी थे, जैसे जीवी जोशी, एक दो लोग और भी थे, कैसे उससे इंस्पायर हुए, कैसे उन्होंने, कैसे मतलब एक ही दो लाइन में हो जाएगा, कैसे सबने ड्रेन ऑफ वेल्थ से फिर जो है ना पर कैपिटा इनकम निकालनी या जीडीपी इंडिया के निकालनी शुरू कर दी, यानी जनक हो गए वो। तो इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। तो आई थिंक यू हैव फेयरली स्टार्टेड ऑन ट्रैक, वी विल सी दैट। डू यू थिंक दैट फ्री मार्केट इकोनॉमी बिफोर 1947 हैड ए रोल टू चूज मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो पहली बात तो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि क्या 1947 से पहले फ्री मार्केट इकोनॉमी थी? वाज इट ए फ्री मार्केट इकोनॉमी? सबसे पहले तो आप सीधा बताइए कि पहले आप शुरू कर सकते हैं इस आंसर में। यू कैन स्टार्ट विद द पॉइंट दैट, जैसे आपने लिखा भी है सेकंड पैराग्राफ, that mixed plant economy model was adopted by India post 1947 as propounded by Jawaharlal Nehru given colonial history and its learnings. तो यहाँ पर being economics optional do not bring, it is not Nehru, it is the demand of the circumstances. इतना बड़ा रूरल इंडिया, 2-5% 10% 20% जितना भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई एम नॉट गेटिंग द फिगर्स एज ऑफ नाउ, बट लिटरेसी लेवल हमारा बहुत थोड़ा था, अर्बनाइजेशन बहुत थोड़ा था। भारत, विविध भारत, और इतनी सारी पॉपुलेशन, क्या करें फिर? कौन सा मॉडल कौन सा ले लें? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो नेहरू जी के नाम की जगह आप बोल सकते हो कि भारत ने जो मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल, वी स्ट्रगल्ड एंड वी वर एट ए कस्प। तो हम अपना मॉडल, हमारा को अपना मॉडल बनाना था, तो मिक्स्ड मॉडल ही हमारा शुरू में मॉडल हो सकता था। सो ऐसा कह के ना आप क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, और ऐसा कहकर आप सुपरफिशियल आइडिया भी नहीं लेंगे, और आज का जो गवर्नमेंट है, आज का जो माइंडसेट है ना, वो भी हमें फिर सपोर्ट करेगा। हमें अगर क्रिटिक भी करना है तो हमें बाद में करना है हल्का सा,
So free market economy existed but merely on surface due to intensive, no, it is not interference. ब्रिटिश इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ब्रिटिश आर इंट्रेंच्ड। इंटरफेरेंस वर्ड तो ये हुआ कि आप खाना खा रहे हो और मैं आके चिल्लाने लगा, लेकिन वो क्या होगा जब आपकी थाली में मैं डिसाइड करूंगा कि आधी रोटी खाएगी और दाल भी मैं दूंगा और सड़ी भी दूंगा, तो वुड यू कॉल इट इंटरफेरेंस? सो वी वुड हैव यूज्ड इन सेकंड पैराग्राफ सम अदर काइंड ऑफ लिटिल, वो आपको बिल्कुल अच्छे से कर देता। द वुंड्स लेफ्ट आफ्टर द ब्रिटिश रूल कुड नॉट अलाउ इंडिया टू फंक्शन एज ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। Agreed again, it is a very good philosophical point, but I would say again, I would have written here in point number 1, the backward agricultural system, backing the break of our agricultural system, 1, comma, limping manufacturing activities, not standing on their own, comma, not having any capital investment of our own। तो ये चीजें ही नहीं है तो फ्री मार्केट इकोनॉमी तो बहुत दूर की बात, कैसे करेंगे हम? हाउ वी विल स्टार्ट? वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैंप्स, हम कहां जाए? प्योर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। ये आप जो सेकंड पॉइंट लेके आए हो, ये आपने इकोनॉमिक्स पेपर 1 के अंडरस्टैंडिंग को आप लेके आए, दैट आई अप्रिशिएट। मैसिव पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स मेड पीपल डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर मेजर्स, फॉर एग्जांपल बंगाल फेमिन एंड वेल रिटन, लेकिन थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। 1 से आप कोई थ्योरी का नाम भी लिख सकते हो, जैसे भी आपने लिखा, थोड़ा सा और हो सकता है। पार्टीशन कॉज ब्लडशेड एंड वेरी ट्रू। आई थिंक पॉइंट्स आर फेयरली, यू आर पिकिंग अप ऑल बिग चंक्स। We have to make it a little formal, we have to make it little, थोड़ा सा हल्का सा डेटा, हल्का सा, या किसी ने कुछ बोला, बस इतना सा करना है। So therefore the model of the free market thought it was not the way forward post independence. The planning commission was set up in 1905 plans. The basic infrastructure, temples of democracy, dam, agriculture were the initial focus, as also reflected by PC Mahalan Boys. I think fairly enough, good justice done. So let's see that how they have been returned. So drain of wealth refers to the portion of national income that is not available in the country for consumption. See, as simple as that. It was first brought to light by economics like Dadabhai Naoroji in his book Poverty and Non-British Rule India. Very simply written, very very simple. 3 distinct phases. So वही वाली बात है, ये हमारा चोपड़ा जो मैंने आपको पहले भी कहा था, 3 फेज जो दिए हुए हैं, लेकिन ये भी इन्होंने भी जो फेज बताए हैं, तो फेज को इन्होंने अपने आप क्रिएट कर दिया। असल में कोई फेज नहीं है ड्रेन ऑफ वेल्थ, लेकिन इन्होंने उसको उससे जोड़ दिया। तो पहला फेज आ गया, इन्होंने भी ईयर नहीं डाले, 1757 से लेके जैसे 1813 एक फेज है, 1813 से 1857 एक फेज है, जो इन्होंने इंडस्ट्रियल ड्रेन वाला फेज बोला, ये फेज 2 है। और थर्ड वाले में आपने जो है, थर्ड में आ गया फाइनेंशियल ड्रेन, यानी कि जैसे एजेंसीज आ गई, जो उन्होंने थर्ड में लिखा भी होगा। तो सेकंड वाले के अंदर गारंटेड सिस्टम, जैसे मैंने आपसे बोला था, गारंटेड सिस्टम ऑफ और रेलवेज वाला पार्ट आ गया। फर्स्ट वाले में जो है, जब आपने बक्सर और वो प्लासी किया, जब आपने प्लंडरिंग की, यानी फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये की वर्ड है, जैसे जैसे की वर्ड है ना, प्राइवेट पोर्शन ऑफ ड्रेन। दूसरे में आ गया वन वे फ्री ट्रेड, तो ये सिंपल है, वी ऑल्सो नो दैट, सो वी विल बी जस्ट पुटिंग फोकस ऑन इट। और उसके बाद देखिए, जैसे इन्होंने बोला, एस्टिमेशन भी दे दिया, 1867 में 4 मिलियन पाउंड, 1870 में 12 मिलियन पाउंड, तो थोड़ा सा फिगर को हम लेके आएंगे। और उसके बाद जो है, ड्रेन हेल्प powers to take off the stage in Britain and make them prosperous. On the other hand, India poor, backward, impoverished and deindustrialized. तो की वर्ड्स हैं, हमारे भी आ रहे हैं, हमारी चर्निंग थोड़ी सी अभी हो रही है। दूसरे में देखिए लेसेज फेयर, देखो अब उन्होंने मार्केट इकोनॉमी का क्या वर्ड लिखा, लेसेज फेयर आइडियोलॉजी। तो आई गिव एंजॉय, व्हेन यू एंजॉय यू ब्रिंग अदर टर्म्स टू इट। सो लेसेज फेयर आइडियोलॉजी वाज अडॉप्टेड इन ब्रिटिश इंडिया ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एडम स्मिथ, रिकार्डो एक्सेट्रा। वेरी ट्रूली स्पीकिंग, वी ऑल्सो नो दैट कि इंडिया में उन्होंने क्यों किया ऐसा, यानी उन्होंने इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में लिख दिया। इन रियलिटी इंडिया स्टेट पॉलिसी रिमेन्ड सबसर्विएंट टू ब्रिटेन एंड वाज कॉल्ड इंपीरियलिज्म ऑफ फ्री ट्रेड। बहुत बढ़िया। आवर एक्सपीरियंस हैड prompted us to adopt mixed economy. India under free trade, अगर मान लो है भी, converted into colonial economy, supply of raw materials of primary good, importers of finished good. तो simplicity, I think I will give marks to simplicity. So हमें पता बहुत कुछ है, आपको भी बहुत कुछ पता है, तो अब हमने एक चीज पकड़ी इस सेशन से, जो कि हम सिंपल लिखेंगे। हम जो लिखेंगे वो थोड़ा सिंपल होगा। अनफेटर्ड एंड अनइक्वल कंपटीशन लेड टू प्री मेच्योर डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो वर्ड है, जैसे अनफेटर्ड, अनइक्वल कंपटीशन, ये थोड़ा सा वोकैबुलरी है, ये हमारे पास भी है, लेकिन वही है, जब आप थोड़ा सा और काम डाउन होगे तो ये वोकैबुलरी अपने आप। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज इज अ गुड वर्ड, मोस्टली इन हैंडलूम। डिनाइड, यानी कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि आंसर माइंड में चल रहा है, आंसर माइंड में चल रहा है, थोड़ा रिकॉल है, थोड़ा सा आप इंजॉय करके खुद ही लिखते हो, ज्यादा बड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि आप लिखे जा रहे हो, हर एक का अपना स्टाइल है, लेकिन आई थिंक कीवर्ड्स आर विजिबल। Denied the dynamic benefits of industrialization. The private sector in India remained concentrated both regionally and biased in, ठीक है चलो कोई नहीं, lack of infrastructure creation to support industries by the Britain. So Indian manufacturing base small and non-diversified, economic term आ गया.
कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। लैक ऑफ मार्केट ओरिएंटेशन, तो यानी इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से इसको लिख दिया कि अगर मान लो आप भी लिखते, मान लो कि अगर क्या है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, क्या है, अरे मैं तो और सिंपल बोल सकता हूँ। फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए आपको सबसे पहले कैपिटल, मैच्योर कैपिटल चाहिए, आपको कैपिटल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, हमारे पास कहाँ थे। आपको एक लिटरेट पॉपुलेशन चाहिए जो मॉडर्निटी की वो आंसर में इन्होंने भी नहीं लिखा है, तो यानी कि इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को बताने की कोशिश की। सो इन लीव ऑफ फ्री ट्रेड प्रोटेक्शन वाज डिनाइड टू की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल सिस्टम ओनली cater टू द नीड ऑफ ब्रिटिश, ठीक बात है। ड्यू टू दीज रीजन द रोल ऑफ स्टेट इन जनरेट इन जनरेशन स्टेट इन relevant forward backward language, हमने पहले भी ये वर्ड यूज किया। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, बेसिक इंडस्ट्री वाज envisioned along with private sector, this was supported by private sector, तो इन्होंने बात का बता दिया। फॉर द फेलियर स्लैश limitation of capitalism and free trade was exposed through Great Depression, which further prompted us to adopt mixed socialist structure in economy. I think last में जो लिखा, ये जो ग्रेट डिप्रेशन 1930s के बाद जो किया था, ये जो लेके आया, ये भी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने कैसे इनोवेटिव अपने आप सोचा, क्योंकि ये कोई पॉइंट नहीं है, ये आपको किताब में कहीं नहीं मिलने वाला। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने तो नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात की थी, इन्होंने वो तो नहीं लिखा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि स्वदेशी, हम शुरू से स्वदेशी, हम तो स्वदेशी सेल्फ रिलायंस की बात ही कर रहे थे। तो यानी आंसर ओपन एंडेड हो सकते हैं, आंसर्स में कीवर्ड्स हम अपने आप लेके आ सकते हैं, कुछ चीजें स्टैंडर्ड रहनी चाहिए। तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी कैन डेफिनेटली टेक अप। सो आई थिंक फेयरली फेयरली बैलेंस्ड अप्रोच वी कैन से। और आप मुझे अब बताइए कि आपको कंक्रीटली क्या समझ में आया कि हाँ भाई ये टेक अवे में ले सकती हो, ये मेरा मानसिक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा हम कुछ अगर सोचे तो। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। सर एक तो ये कि बिल्कुल प्योरली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो थोड़ा सा जीएस वाला एलिमेंट आ रहा है मेरे आंसर्स में वो। हाँ और यार, एक ही बार आया, कोई बात नहीं। हाँ, और सर जो पॉइंट्स है उनको थोड़ा लैंग्वेज जो है मतलब रिफाइंड है मॉडल हाँ आंसर हल्की सी, हाँ। का। हम्म। तो वो एक हम्म। एलिमेंट है वोकैबलरी, और जो है वो काफी रिफाइंड थी। बाकी कहीं हम्म। पे स्ट्रक्चर बन सकता है, जैसे आपने बोला कि एक फ्लो चार्ट बन सकती है, सर्कुलर हाँ डायग्राम। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आई विल शेयर विद यू, सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया की किताब है, जी। उसके अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ को उन्होंने मतलब 2 पेज में बहुत अच्छे से मतलब ऐसा समझाया है कि हाँ मैंने कहीं देखा नहीं किसी आंसर। हाँ जी। होम चार्जेस, इन्वेस्टमेंट, उन्होंने 4 ऐसे वर्ड बोले, इकोनॉमिक्स का बच्चा उसको सिंपल, मैं तो गूगल करके आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। जी मतलब सर। हमें ज्यादा, आपके पास नॉलेज है, आपके पास बहुत सारा, हमारे पास बहुत सारा सेटअप है, हमें हम्म। जल्दी नहीं लिखना है। आप ज्यादा लिख रहे हो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें लेके आए आप, बहुत जी। सारी चीजें आई, तो कम भी आए, कम हम्म। भी आए लेकिन पक्की आए। हाँ। और क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक टर्म्स में तो बात करनी हाँ, पड़ेगी। तो आई रियली अप्रिशिएट, जैसे ये बोला कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, अनफेटर्ड, हम्म। इन्फेंट इंडस्ट्री, मतलब ये हाँ थोड़ा वही सा तो, रिफ्लेक्ट। वोकैबलरी उससे। बट हाउ डू यू जज योरसेल्फ व्हेन यू सी द थर्ड पर्सन? सो एज अ थर्ड पर्सन आई वुड से कि सर वो वोकैबलरी से जो लेवल है स्टैंडर्ड इनहेंस होता है, तो वो एक मेरे को मेजर इम्पैक्टफुल चीज लगी। तो सर ऑन 10 आई वुड रेट, अभी 5 है। ठीक। हम्म। सो वी आर ऑन ट्रैक, हमारे पास सब कुछ है। अगर जैसा मैंने आपसे बोला था, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम नोट्स को स्क्वीज कर देंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। सो आई जी। थिंक फेयर इनफ है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गो विद योर ओन माइंड that हम्म। what I can, what I can recall and what I can write, वो that exercise can be done. If हाँ। after certain period of time, if we find कि still हम मजा नहीं आ रहा है और हम पूरा बेस्ट नहीं, तो then we will do that हम्म। side by side. हाँ जी सर, क्योंकि अभी it is not the question, ब्रॉड, हाँ। हाँ ब्रॉड व्यू से अभी तो जस्ट कलेक्ट किया था मैंने, तो इसलिए मेरे को लग रहा जी, था कि मेरे को माइक्रो उसमें जाने के लिए एक बार मारना पड़ेगा फिर से राउंड, और मार देंगे, रिवाइज भी क्या हो दिक्कत जाए। है। क्योंकि अभी वो लर्न करने और ग्रास्प करने के हिसाब से भी इतना वो नहीं किया था तब, तो आई थिंक वो करना पड़ेगा एक बार। But then which begins on the right track, it always goes on the right track. जी सर। So thank you very much, see you in the next discussion soon. हाँ जी सर।